غلام یسوع کا فضل پر فضل آپ کے ساتھ اور آپ کی روح کے ساتھ ہمیشہ تک بنا رہے۔ بخوبی پرستش ہم نے کی، وقت ہے کلام خدا کا۔ کلام خدا سننے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی وہ وقت ہے جس کو غور سے سننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی حصہ میں ہمیں اپنی ایک چیز بہت ہوشیار رکھنی پڑتی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ کلام کے وقت وہ چیز جسم کی بہت ہوشیار رکھنی پڑتی ہے، وہ کیا ہے؟ کان۔ کیونکہ یسوع کہتا ہے خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو۔ یسوع اس لیے کہتا ہے کہ خبردار رہو کیونکہ سننے کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر غلط سن بیٹھے تو غلط ایمان پیدا ہو سکتا ہے، اور کئیوں کا ہو چکا ہے۔ کئیوں نے سنا کہ لکڑی سے دعا مانگو، اور لوگ لکڑی کے آگے دعا کرتے ہیں۔ کئیوں نے کہا کہ چاند خدا ہے، کئیوں نے کہا کہ سورج خدا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں، لوگ اسے پوچھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ غلط سن بیٹھے ہیں۔ اے عزیزو، اے خدا کا سو، ٹھیک سننا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پالوس بھائی کہتے ہیں کہ دونوں کر کے نبیوں میں سے بولے، باقی ان کو کیا کرے گی؟ پرکھے۔ تو پرکھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت جو آپ کے سامنے شخص کھڑا ہے، اسے بھی پرکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے کلام کو سننا بھی ہے اور ساتھ میں پرکھنا بھی ہے۔ چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں MMB کی طرف سے پاکستان میں خدمت کرتا ہوں۔ MMB کیا ہے؟ مسیح ملتن بیٹھک، یعنی کہ اردو میں مسیح رفاقت۔ جو ہمارے پاسٹر ہے، پاسٹر ڈینیل راج، جو انڈیا کے ممبئی شہر کے اندر رہتے ہیں، جو کئی پرچارکوں کو دنیا بھر میں تیار کرتے ہیں، کسی کو زوم میٹنگ کے ذریعے، تو کسی کو یوٹیوب کے ذریعے، تو کئیوں کو فیس بک کے ذریعے۔ ان کا خود کا یوٹیوب چینل، فیس بک پہ وہ پرچار کرتے ہیں اور لائیو ہم سے میٹنگ کرتے ہیں، لائیو ہمیں کلام کی باتیں سکھاتے اور بتاتے ہیں، اور ان کی طرف سے اس پورے پاکستان میں جو خدمت کا سر انجام دیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے وہ شخص کھڑا ہے۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا آپ اس شخص کی بڑائی کر رہے ہیں؟ نہیں، اس شخص کو جس خدا نے کھڑا کیا، میں اس خدا کی بڑائی کرتا ہوں کہ خدا نے اس جہاں میں بھی ایسے ایسے سوروں، ایسے بڑے بڑے خادم مقرر کر رکھے ہیں جو میں اس کلام کی صحیح باتیں کا مطالعہ کر کے بتاتے ہیں۔ نہیں تو یسوع کے پیچھے چلنے والی بھیڑ تو بہت زیادہ تھی، مگر شفا ایک نے پائی، وہ کون تھی؟ جس نے پلہ چھوا، 12 برس کا جس کا خون جاری تھا۔ مجھے تعجب ہوا جب متی کی انجیل کا میں نے مطالعہ کیا، اس کو پہنچنے گئے میں یسوع پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور کلام پیش کرتے ہیں، اور جب آخر بھاگ میں نیچے آتے ہیں پہاڑ میں سے تو لکھا ہے کئی بھیڑ یسوع کے پیچھے چلی، مگر وہاں پر دوسری آیت پہ لکھا ہے کہ ایک کوڑی یسوع مسیح کے پاس آیا اور کہتا ہے اگر تو چاہے تو میں پاک صاف سوچ سکتا ہوں۔ بھیڑ بہت ساری پیچھے چلی آتی تھی، میں یسوع کہتا ہے دیکھو یہ ایک کوڑی جو آیا ہے، وہ کوڑیوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں، کوڑی الگ رہتے تھے ویرانوں میں، وہ لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ یعنی میں اس یسوع نے اس پہاڑ پر ایسا بات کیا۔ آپ کو میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ جب میں کے بنا بات کروں سمجھ آ رہی ہے جو میں بات بولوں؟ ٹھیک۔ تو جو بات میں بولنا چاہتا ہوں کہ یسوع نے ایسا پرچار کیا کہ ویران تک یسوع کی مسیح کی آواز گئی، خداوند یسوع کی آواز گئی، اور وہاں سے ایک کوڑی اٹھ کر آیا کہ اے خداوند اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں۔ وہاں بھی لکھا ہے کہ کئی بھیڑ یسوع کے پیچھے چل رہی تھی، مگر ایک اٹھ کر آیا، ویرانوں میں سے ایک یسوع کا پیغام اٹھ کر آیا ہے، ایک شخص۔ اے عزیزو، بھیڑ تو بہت ساری ہے یسوع کے پیچھے چلنے والی، مگر ایمان سے چھونے والے لوگ یسوع کو کم ہے۔ بھیڑ بہت زیادہ ہے، دنیا یسوع کے پیچھے چلی جاتی ہے، مگر یسوع کو وہ ایک چاہیے دوڑ جو نکل کر کس کا مقابلہ کرے۔ دوڑ نے کس کا مقابلہ کیا تھا؟ جاتی جولیٹ کا۔
بادشاہ پریشان ہے کہ اس شخص کا کیا کروں جو اتنا قدر آور ہے اور 40 دن تک اسرائیل کے خدا اور اسرائیل پر نالش کرتا رہا، یعنی کہ لعنت کرتا رہا. اور ایک شخص، ایک بچہ نکل کر سامنے آتا ہے، داؤد. مجھے بھی اور خدا کو اس داؤد کی تلاش ہے. ہم پورے دنیا میں اسی ہی کی منادی کرتے ہیں جس خدا کی، جس یسوع کی شاگرد بات کرتے تھے، ہم اسی یسوع کی بات کرتے ہیں. کیونکہ پالوس بھائی کہتا ہے کوئی اور روح، کوئی اور یسوع، کوئی اور خوشخبری اگر تمہیں سنائے تو اس کا یقین نہ کرنا. ہم بھی اس یسوع کی بات کرتے ہیں، اس یسوع کے گواہ ہے جس یسوع کے گواہ 12 شاگرد تھے، جس یسوع کا گواہ پالوس بھائی خود تھے. ہم بھی اس یسوع کے گواہ ہیں اور اسی کی بات کرتے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے وہ داؤد جو نکل کر مقابلہ کرے، کس کا؟ شیطان کا. اس داؤد کی ہمیں تلاش ہے کہ نکل کر آئے شیطان کا مقابلہ کرے. یعنی کہ ان خادمین کا بھی جو اس کلام میں سے بولتے نہیں، اپنی ہی طرف سے بولتے ہیں. وہ ٹرانسفارم ہو چکے ہیں، جیسے ماں ہوا ٹرانسفارم ہو چکی، بدل چکی جب آدم کے پاس گئی. پہلے تو وہ آدم کی ہوا تھی، مگر جب شیطان کے ملنے کے بعد اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی آنکھیں بدل چکی تھی، مگر آدم بھی پرکھ نہ پایا. جس وقت اس کی ہوا بدل چکی تھی، اس کو چاہیے تھا کہ اس کو پرکھنا. جب اس کے پاس ہوا پھل لے کر آئیے، مگر آدم نے بھی نہ پرکھا، پرکھے بنا پھل کھا لیا، تو پھر کیا پیدا ہوا؟ گناہ. وہ گناہ جب پیدا ہوا تو پھر انسانیت کے اندر موت داخل ہوئی. آپ نے یہ حوالہ پڑھا ہوگا اور سنا بھی کہ اب درخت کی جڑ پر کڑاڑا رکھا گیا ہے. جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا ڈالا اور کہاں ڈالا جاتا ہے؟ آگ میں. یہ درخت کون ہے؟ یہ پھل کون ہے؟ اور آخر کیوں اسے آگ میں ڈالا گیا؟ میرا آج کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے، گزرے سال کی بے پھل ڈالیاں. پھر ایک بار بتاتا ہوں، آج کا عنوان ہے، آج کا جو وشے ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، گزرے سال کی بے پھل ڈالیاں آخر کیوں کاٹی نہ گئی. گزرے سال ہم بے پھل رہے، کوئی پھل نہیں، کوئی خدا کے ساتھ رابطہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی روحوں کو بچانا نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کاٹ ڈالے کیوں نہیں گئے؟ کچھ لوگ کاٹ ڈالے گئے ہیں. کئیوں کی شوق تھا، کئیوں کی آرزو تھی، کئیوں کی خواہش تھی اس نئے سال کو دیکھیں، اس نئے سال کو دیکھیں. مگر کوئی 12 بجے سے جب بجنے والے تھے، اس کے 1 منٹ ہلاک ہوا. کوئی کب یعنی کہ ہلاک ہوا، کوئی کب مرا، کوئی کب مرا، اس نئے سال کو دیکھ نہ سکے. تو آپ اگر دیکھ سکے ہیں تو اس کا کارن میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو گزرے سال بے پھل رہے ہیں، کوئی خدا سے رابطہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، مگر ہم پھر بھی بچے ہوئے ہیں. آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اس سال کو دیکھا ہے تو کیوں دیکھا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ میں سے بھی کئی بے پھل گزرے سال میں بے پھل زندگی بسر کر چکے ہیں. تو آپ سوال یہ ہے کہ آپ کاٹ ڈالے کیوں نہیں گئے؟ اس کے بارے میں سیکھیں گے. ایک تفصیل آپ کے سامنے میں پڑھنے لگا ہوں، اس تفصیل کو ذرا غور سے سنیے گا. ایک بات یاد آ گئی، سوچا کہ یہ بھی کر ہی دوں. باپ آدم کو جب برکت دی گئی، وہ برکت کیا تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پھلو. برکت تھی پھلو. کیوں پھلو؟ کیونکہ جیسے باپ آدم نے اپنے بیٹے کی شبیہ پر انسان کو بنایا. یاد رکھے، آدم سے پہلے بھی ایک آدم تھا جس کی صورت اور شبیہ پر انسان کو بنایا گیا. وشال بھائی، اس آدم کے پہلے بھی کوئی آدم تھا، ہم نے کبھی نہیں سنا. تو سن لے، اگر یوحنا کی انجیل اس کا 3واں باب اس کی 16ویں آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب سوال یہ ہے، اکلوتا بیٹا کب سے تھا؟ شروع سے، جب سے خدا تھا
इकलौता बेटा तब से था। यूहन्ना की अंजील पढ़े तो यीशु कहता है, ए बाप, जैसे पेशकश से तू मेरे साथ मोहब्बत रखता था वैसे ही इनसे भी मोहब्बत रख। यानी कि पेशकश से यीशु, खुदा बाप किससे मोहब्बत करता था? यीशु से। तो जिसकी सूरतों और छवियों पर इंसान को बनाया गया वो यही यीशु था। वो यही यीशु था जिसकी सूरतों और छवियों पर इंसान को बनाया गया। अब आदम को जब बना, यीशु की सूरत और छवि पर आदम जब बनाया गया तो आदम को बरकत दी कि तू फल, यानी कि तू भी अपने जैसा फल ला, अपने जैसी नस्ल पैदा कर, अपने जैसे इंसानों को पैदा कर, यानी कि अपने में से फल को पैदा कर। और आदम जब बनाया गया उसमें कोई गुनाह न था। खुदा चाहता था कि आदम जैसी नस्ल, जिस आदम को मैंने बनाया उस जैसी नस्ल आगे आदम की बढ़े। मगर एक शख्स को यह पसंद ना था। वो कौन था कि आदम की नस्ल बढ़े? आदम से कौन चलता था, कौन जालसी करता था कि आदम मर जाए? कौन था? इब्लीस, जो गिराया गया। उसको पसंद नहीं था आदम, ना हवा पसंद थी, ना ही आदम पसंद था। और जब खुदा ने कहा था फलो, यानी कि आदम अपनी नस्ल को पैदा कर, तो शैतान को यह अच्छा ना लगा। तो जब शैतान ने हवा को बहकाया, हवा ने आदम को बहकाया, फिर वहां से गुनाह दाखिल हुआ, फिर भी नस्ल पैदा हुई, फिर भी वो फले। मगर कैसे फले? कड़वे दाने, कड़वा फल लाए। आदम को हुक्म था अच्छा फल ला, यानी कि फल वो अच्छा फल ला। मगर जब वो उसने गुनाह कर बैठा वो तब भी फले, मगर फल अब कड़वा निकल आया। गुनाह के सबब से उसकी नस्ल, हम जो नस्ल है उसकी गुनाह के सबब से कड़वी पैदा हुई। इसीलिए यीशु तमसील में कहता है कि जब एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और सोते हुए में, लोगों के सोते हुए में शैतान आया और कड़वा बीज बोकर चला गया। कहां बोया? बागे एदन में। कड़वा बीज जब बोया तो नस्ल भी, फल भी कड़वा पैदा हुआ। तो हम सीखेंगे कि पिछले साल हम काट डाले क्यों नहीं गए। वे साहब आप निकाल सकते हैं मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 6 से 9वीं आयत तक का मुताला करेंगे। मैं वर्ष बाय वर्ष एक आयतों के सामने आपके सामने पढ़ूंगा और आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये बात बताकर और समझा कर जाऊं कि आखिर हम गुजरे साल बेफल थे। सवाल ये था हम काट डाले क्यों नहीं गए? क्यों यीशु ने, खुदा बाप ने हमें छोड़ दिया? किस मकसद के लिए छोड़ दिया? ये बातों के बारे में सीखेंगे जी। लूका की अंजील उसका 13वां बाब, उसकी 6 से 9वीं आयत तक का मुताला करेंगे। 6 आयत में बताती है, यहाँ पर एक अंजीर के दरख्त की तमसील है। सुनिएगा जरा गौर से, मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने क्या पढ़ा और आपने क्या सुना। 6 आयत में बताती है कि फिर उसने एक तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। यहाँ पर 6 आयत कहते हैं कि किसी ने एक अंजीर का दरख्त लगाया और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। भाई एक शख्स मेरे पास आ जाए, आप में से कोई भी आप आ जाए, कोई भी एक शख्स आ जाए मेरे पास। आप इस तमसील को जरा देखिएगा, मैं एक डेमो करने लगा हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये तमसील समझे। अगर ये हारिस भाई आ गए, हारिस भाई यहाँ पर, हारिस भैया जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। यहाँ पर लिखा गया एक शख्स ने पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया, यानी कि ये एक शख्स है, इसने अंजीर का दरख्त लगाया। जी एक शख्स हो जाए, आप उधर हो जाए, आप आ जाए। दरख्त लगाया और आगे साथ में कहते उसने उस बात बरस से कहा कि देखो 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, उसे काट डाल। ये जमीन को क्यों रोके रहे हैं? 7वीं है, 8वीं है। उसने जवाब में, यानी कि बागबान ने जवाब में कहा, उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, इस साल तो और भी से रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद उसे काट डालना। अब यहाँ पर एक पाकिस्तान है और एक पाकिस्तान लगाने वाला है और एक दरख्त है और एक बागबान है। जी बागबान भी आगे कोई
आप आगे बात कर। अब ये पाकिस्तान में रहने वाला कौन है और ये दरख्त कौन है, अंजीर का दरख्त, और ये बागबान कौन है? सुनिएगा, जिसने पाकिस्तान लगाया, पाकिस्तान कहते हैं दुनिया को, वो खुदा बाप है। नाटक में ये खुदा बाप है। इसने तमाम दुनिया में दरख्त लगाया। दरख्त कौन सा लगाया? ये अंजीर का दरख्त। एक बाप ने दुनिया में अंजीर का दरख्त लगाया और बागबान है ये, और ये शख्स बागबान पता कौन है? ये यीशु है। कैसे? तिमोथेयुस की किताब में लिखा है, तिमोथेयुस पहला तिमोथेयुस उसका दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत, वहां पर लिखा है इंसान और खुदा का दरमियानी एक है। वो कौन है? यीशु। और खुदा बाप कई सालों से इस दरख्त में फल ढूंढने आता है, और ये दरख्त आप और हम हैं। कई मुद्दत से खुदा बाप को तलाश है इस इंसान में फल ढूंढने की, क्योंकि आदम का हुक्म था कि अपने जैसा एक नस्ल को पैदा करे, अपने जैसे एक फल को पैदा करे। खुदा बाप ने इस दुनिया में इंसान को पैदा किया, आदम को पैदा किया, हमें पैदा किया, ताकि उसमें क्या ढूंढे? फल। क्योंकि आदम को यानी कि बरकत थी फल ढूंढे। कई मुद्दत से आता रहा, या बल्कि 3 बरस गुजर गए, कई मुद्दत से आता रहा। आज मेरी उम्र 26 साल है। गुजरे साल पीछे चले जाऊं जब मसीह की मुझे पहचान नहीं थी, ना थी। मैं 15 साल का था तो यीशु खुदा बाप आता था, मुझ में फल ढूंढने नहीं पाता था। 16 साल का हुआ, आता था, फल ढूंढने नहीं पाता। 17 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, फल ढूंढने आता था, नहीं पाता। ऐसे ही मेरी माँ आपको कहता है कि खुदा बाप कहता है कि मैं फल ढूंढने आया और नहीं पाया। ऐसे भाई को कहता है फल ढूंढने आया, नहीं पाया। ऐसे ही तमाम भाइयों को जितने इधर बैठे हुए सबसे खुदा कहता है कि मैं पिछले साल फल ढूंढने आया मगर नहीं पाया। वो खुदा बाप ने क्या कहा? इसे काट डाल। ये फल दरख्त, ये इंसान, ये आदम फल नहीं लाया। खुदा बाप ने एक हुक्म जारी किया, अब इसे काट डाल। और क्या आज हमने मरकजी आज क्या पढ़ी थी? जी बाजी आपने पढ़ी थी। पुराना दरख्तों की जड़ पर लिखा हुआ है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता उसे काट डाला जाएगा। वो दरख्त इंसान था जिसकी जड़ पर पुराना रखा हुआ है। खुदा को आपसे उम्मीद है अच्छे फल की, जैसे बाप आदम से उम्मीद थी अच्छे फल की, मगर कल फल की बायस, गुनाह की बायस आदम से निकाल दिए गए, मौत में चले गए कड़वे फल की वजह से। ऐसे ही जब खुदा बाप ने हमारी जिंदगी में फल ढूंढता है, गुजरे साल फल ढूंढने आया, न पाया, और ये शख्स इधर खड़ा हुआ था वकास भाई, जिसको बनाया था मैंने, जिसको नाटक में यीशु ने अपील की है बाप के आगे कैसे साल लाने दे, यानी कि गुजरे साल तो गुजर गया। खुदा बाप ने अपील की, खुदावंद इस साल इसको रहने दे, ये अगले साल यानी कि इस साल ये फल लेकर आएगा। मैं फला फेंकूंगा, यानी कि खाद डालूंगा ताकि ये बढ़े, ताकि ये फल लेकर आए। और आप गुजरे साल में हमारा यानी कि अनुमान ये था, दूसरे साल में आप काट डाले क्यों नहीं गए? क्योंकि इसी बागबान ने खुदा के आगे आप सबकी यानी कि जो दरख्त खड़ा हुआ था इसकी अपील की है कि इसको आप रहने दें। गुजरे साल आप इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि यीशु ने खुदा बाप के आगे अपील की, क्योंकि इंसान और खुदा के दरमियानी एक ही है जो आपकी अपील करता है, जो खुदा बाप के दाईं तरफ है, जो आपकी अपील करता है। आपने कफारे के सबब से उसने आपकी अपील की, आपने मार खाने का सबब से उसने आपकी अपील की, उसने मुंह पर चुमाते खाए ताकि आपकी अपील करे। आपकी अपील रखी गई खुदा बाप के आगे। अगर ये यीशु ना होता तो मैं समझता हूँ नूह का जमाना याद रखे, काट डालेंगे। इसी यीशु के कारण आप नए साल में दाखिल हुए हैं। किसी ने आपकी अपील की है, किसी ने आपकी दरखास्त की है कि बाप रहने दे, अगले साल यानी कि इस साल ये फल लाएगा, ये दरख्त फल लाएगा। और नामी आयत में क्या लिखा था? यीशु भी कहेगा आखिर में, आप अगर फल नहीं लाते, इस साल भी फल नहीं लाते, तो यीशु क्या कहता है? वो बात यानी कि जो यीशु की तस्वीर थी, निशानदेही करता था। अगर आगे को फला तो
खैर, नहीं तो इसके बाद उसे काट डाल। एक दिन यीशु भी खुदा बाप से कहेगा, ऐ बाप ठीक है, इतने साल मैंने इसके शफायात के, इतने साल मैंने शख्स के दरख्त के शफायात के दरखास्त के, अब ये नहीं फल लाता तो इसे काट डाल। नूह के जमाने में उनको कितने दिन दिए गए? 120 साल शफायत यीशु ने की, नहीं तौबा की, नहीं फल लाए, क्या हुआ? काट डालेंगे, सदूम और अमूरा काट डालेंगे। ऐसे ही ये दुनिया भी एक दिन, और ये दरख्त जो इंसानियत है काट डाली जाएगी। कौन सी इंसानियत, कौन सा इंसान काट डाला जाएगा? जो फल नहीं लाते। और लिखा है जो डाली काट दी जाती है, जो दरख्त काट दिया जाता है, वो कहाँ डाला जाता है? आग में, आग में। यीशु को और खुदा बाप को आपसे अपील, यानी कि आपसे दरख्वास्त है, आपसे उम्मीद रखता है कि फल लाओ, फल लाओ। फल का बोल तालों के कलाम मुकद्दस में, फल लाओ। मूसा को जब भेजा बनी इस्राएल को उनके पास काम करने, फल जमा करने। कई नबियों को खुदा ने भेजा क्या करने? फल जमा करने के लिए। फिर आखिर में यीशु खुद आता है, क्या करने? यीशु कहता है मैं भी काम करता हूँ, मेरा बाप भी काम करता है। किस लिए काम करते हैं? किसान जब जोता है जमीन को तो किस लिए जोता है? फल पैदा के लिए, ताकि फसल हो, फल पैदा करने के लिए। एक बात याद आ गई, सोचा कि कर ही दूं। दो बैल जब चलते हैं तो जमीन को जोतते हैं। अगर एक कहे कि मैं नहीं चलना चाहता, क्या दूसरा काम कर सकता हूं? नहीं। तो है मेरे भाइयों, यीशु भी चाहता तो अकेले काम कर सकता था। उसने 12 का चुना, 12 के बाद 70 को चुना, 12 के बाद 70 को चुना, 70 के बाद 120, 120 के बाद पतरस ने बात किया 3000 से फिर 5000, आज पूरी दुनिया। तो शकीलों ने क्या जमा किया? फल जमा किया। एक और औरत याद आ गई मेरे को, सामरिया गांव में किसने मुनादी की थी? सामरी औरत ने की थी। सामरी औरत ने मुनादी की थी। सामरिया औरत में शहर के अंदर सामरिया औरत ने ही मुनादी की थी। दाकपत शहर में किसने मुनादी की थी? दाकपत शहर बुदरू गिरफ्तार शख्स था, जिसकी बुदरुएं निकालेगी, उसने 10 शहरों के अंदर मुनादी की। क्योंकि फल जमा करने के लिए, फल जमा करने के लिए। स्टिफनेस का, शहादत का फल कौन था? पौलुस रसूल। स्टिफनेस जब शहादत हुआ, शहीद हुआ, तो उसका फल पौलुस रसूल था। फल का जब यीशु जी उठा तो लिखा है कई कब्रें खुल गई और कई मुकद्दसीन जी उठे। वो क्या था? फल। विशाल भाई, फल की इतनी अहमियत थी, फल की इतनी अहमियत है। क्यों? क्योंकि बाप आदम का लफ्ज ही मैंने लोगों को बरकत दी है फलने की। और फल कौन था? बुरा फल? अच्छा फल। क्योंकि अच्छा दरख्त, अच्छा इंसान अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। और जो बुरा दरख्त है, बुरा फल लाते हैं, वो एक दिन काट डाले जाएंगे और काटने के बाद आग में झोंक दिए जाएंगे। है अजीजों, है खुदा बसो, खुदा इस वक्त आपसे मुखातिब है इस कलाम के जरिए कि आप फल लाए। बेफल लोग खुदा को पसंद नहीं, बेफल जिंदगी खुदा को पसंद नहीं। तो खुदा विशाल भाई आपके पास में प्रूफ है जी, आदम को देख लो, अच्छा फल नहीं लाया, अदम से फारिग निकाल दिया। तो जब उसने पहले आदम को नहीं छोड़ा, जो इतने मोहब्बत से बनाया गया, तो हमको कैसे छोड़ेगा? हम भी अगर अच्छा फल नहीं लाएंगे तो काट डाले जाएंगे। तो अच्छे फल की उम्मीद है खुदा बाप को आपसे, खुदा यीशु को उम्मीद है आपसे अच्छे फल की। आपको अच्छा फल लेकर आना पड़ेगा क्योंकि खुदा बाप को आपसे उम्मीद है एक अच्छे फल की। वो नस्ल देखना चाहता है, अच्छी नस्ल देखना चाहता है। और यीशु कहता है यूहन्ना 15 का 1, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप
बागबान है। जो डाली अच्छा फल नहीं लाती, यीशु भी कहता है मैं उसे काट डालूंगा, काट डालूंगा। कई मुद्दत यहाँ पर मैं समझता हूँ बपतिस्मा याफ्ता यीशु को मानने वाले सब हैं जी, यीशु को सब मानते हैं, हाथ खड़ा करें जी, सब मानने वाले हैं। तो यीशु कहता है जो डाली मुझ में कायम है, आप यीशु को मानने वाले, यीशु का ईमान रखने वाले, तो यीशु में कायम है, कायम है। और कायम होने के बाद डाली का काम क्या है? फल लाना। नहीं तो यीशु कहता है काट डालूंगा, काट डालूंगा। उस डाली को यीशु काट डालेगा जो फल नहीं लाती। कई मुद्दत से हम यीशु कहते हैं हम यीशु वाले हैं, हम यीशु पर ईमान रखते हैं, हम तो यीशु के बेटे और बेटियां हैं। और यीशु कहता है ठीक है, अच्छा है, तू मेरा बेटा और बेटी है, मगर बेटा फल कहाँ है? फल कहाँ है? कई मुद्दत से हम अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। मसीह बनकर हम अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं कि सब चलता है, सब चलता है। याद रखें कुछ भी नहीं चलता, आपको फल लाना पड़ेगा। क्योंकि इंसान को जिस पर्पस के लिए बनाया गया, ये फ्रिज है, ये फ्रिज किस पर्पस के लिए? खाना खराब ना हो, इसका पर्पस है। तो ये खाना खराब करना शुरू हो जाए तो क्या करेंगे? इसको फेंक देंगे। तो जिस पर्पस के लिए इंसान को बनाया गया है, किस पर्पस के लिए बनाया? फलो, फलो। तो जब इंसान फलेगा नहीं तो फ्रिज को जब आपने बाहर फेंक दिया तो वो भी आपको बाहर फेंक देगा। एक और बात याद आ गई, सोचा कि कर ही दूं। यानी कि जब 10 कवारियां 5 दाखिल हुई, 5 पीछे से आई, खटखटाने लगी, ऐ खुदावन हमारे लिए खोल। क्या खुला दरवाजा? नहीं। ऐसे भी अभी आप जिंदा हैं, अभी आप जिंदा हैं, फल ला सकते हैं। एक वक्त आएगा दरवाजा बंद, यानी कि कब्र में उतार दिए जाएंगे, दरवाजा बंद, फिर कैसे फल लाएंगे? क्या कह सकते हैं खुदावन हमें जिंदा कर, हम फल लाएंगे? क्या तब कह सकते हैं कि हमें जिंदा कर हम फल लाएंगे? नहीं। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि कब्र में कौन तेरी तारीफ करेगा, कौन तेरी हम्दो सुना करेगा? मरने के बाद आदमी का कोई दुखरा बाकी नहीं रहता। है अजीजो, है खुदा तरसो, खुदा को उम्मीद है एक अच्छे फल की, एक अच्छे फल की खुदा को उम्मीद है आपसे। खुदा आपको देखता है। खुदा को अच्छा नहीं लगेगा जब अपनी बनाई हुई चीज को आग में फेंकेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मगर लिखा है वो अदालत करेगा, अदालत करेगा। और अदालत करने के लिए एक इंसाफ होता है, अदालत के अंदर एक इंसाफ होता है, उसको इंसाफ करना पड़ेगा क्योंकि खुदा है, इंसाफ करना पड़ेगा। उसको अच्छा तो नहीं लगेगा मगर इंसाफ, वो खुदा है, वो जज है, उसको इंसाफ करना पड़ेगा। वो फेंक देगा, वो फेंक देगा। यीशु को भी अच्छा नहीं लगा था जब बागे एदन से आदम को निकाल दिया गया। आदम जब निकाल दिया गया बागे एदन से, यीशु को अच्छा नहीं लगा। फिर दोबारा यीशु को दुनिया में आना पड़ा। अब जो यीशु मसीह को अपनी मान रखते हैं, जब यीशु मसीह को प्यार लेते हैं, यीशु को कबूल कर लेते हैं, वही आदम जो बागे एदन से निकाल दिया गया, यीशु मसीह का वसीले से वही आदम दोबारा आदम में दाखिल होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के सबब से आप जिस भागे एदन से निकाल दिए गए, जिस कारण आप अच्छा फल ना लाए, तब आदम अच्छा फल ना लाया, वो भागे एदन से खारिज कर दिया गया, निकाल दिया गया। यीशु फिर दुनिया में आता है। ऐ बच्चे, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ खुदा तरसो, ऐ बेटियों, ऐ बहनों, मुझ पर ईमान लो ताकि फिर आदम में दाखिल हो। फिर आदम में क्या विशाल भाई, आदम में जाने के लिए कोई दूसरा हल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही हल है, दोबारा उस जगह में जाने के लिए, उस जगह में जाने के लिए एक ही हल है, वो मसीह यीशु पर ईमान लाना और उसके बाद उसके हुक्मों पर अमल करना। यही एक हल है और कोई हल नहीं। कोई कहता है हमारा वाला सच्चा है, उनको बताना चाहता हूँ कब्र में है। कोई कहता है इसकी इबादत करो, बताना यह चाहता हूँ कब्र में है। कोई कहता है हमारा खुदा सच्चा है, बताना चाहता हूँ कब्र में है। कोई कहता है हमारा खुदा सच्चा है, बताना चाहता हूँ कब्र में है। एक खुदा
अपने ही कौम के माँ से कहता है कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। यही खुदा सच्चा है, यही खुदा असली है। इसके वसीला, इसके बिना आप असल में नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। और यही कहता है तो अच्छा फल नहीं लाया, अब मुझ पे ईमान रख और अच्छा फल लेकर आ, अच्छा फल लेकर आ। उम्मीद रखता हूं कि आइंदा से आप अपनी जिंदगी में गौर करेंगे। अच्छा फल लाने के लिए आपको डेली कलाम मुकद्दस को पढ़ना पड़ेगा। हैरिस भाई इधर खिदमत करते हैं, बहुत मेरे हम खिदमत भाई हैं, बकार भाई हैं, आर्नब भाई हैं, यहाँ पर और भी मेरे भाई बैठे हुए हैं, हम खिदमत भाई हैं। आपसे आप इनको इनके पास अपने बच्चों को भेजें, अपनी नस्लों को इनके पास भेजें। एक शख्स याद आ गया, जकई छोटे कद के कारण मसीह को देख नहीं पाता था। एक दिन गुलर के पेड़ पर चढ़ बैठा और यीशु को देख बैठा। गुलर का पेड़ उसकी निजात का जरिया बना। अगर गुलर का पेड़ ना होता तो ना ही चढ़ पाता, ना ही यीशु उसको देख पाता। ये वो गुलर का पेड़ है जिसके जरिए आप यीशु को देख सकते हैं। वो यीशु को जकई किसके जरिए यीशु को देख पाया? गुलर के पेड़ के जरिए। छोटा था, गुलर के पेड़ पर चढ़ा तो यीशु की नजर पड़ी। आप इसके जरिए यीशु के को जान सकते हैं। यही वो गुलर का पेड़ है जिसके ऊपर जकई चढ़ा, यानी कि वो गुलर का पेड़ आपके लिए, ये गुलर का पेड़ जिसके जरिए आप यीशु को देख सकते हैं, यीशु को जान सकते हैं। नहीं तो कई यीशु को जानते हैं मगर गलत जान चुके हैं। कई कहते हैं यीशु खुदा नहीं, गलत जान चुके हैं, गलत जान चुके हैं, गलत जान चुके हैं। जरिया जकई के लिए गुलर का पेड़ था और आपके लिए ये शख्स पहाड़गंज में आपके लिए ये गुलर का पेड़ का काम करता है। आप इसे जरिए यीशु को देख सकते हैं, यीशु को जान सकते हैं। है अजीजों, फल लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्पस, मकसद इंसान को जिस लिए बनाया गया वो फल के लिए। खुदा इस पाक नाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।